नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल के साथ 18 रमज़ान मुबारक 1440 हिजरी। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को जो हज़रात जो शख्सियात दुबाला कर रहे हैं, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम करना चाहेंगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का पुरतपा खैर मक़दम, खुशामदीद मौलाना साहब। इसी तरह पुरतपा खैर मक़दम क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब, आपका भी तमाम नाज़रीन की तरफ से। और नाज़रीन, हमारी पूरी टीम आप सबको खुशामदीद कहती है, सुबह बखैर कहती है। और एक नया दिन हम सब की ज़िंदगियों में दाखिल हो चुका है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, उसकी हम्द व सना करते हैं और अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के पाक कलाम से। क़ारी साहब के खूबसूरत और खुश इल्हान तिलावत कुरान पाक और आपकी और हमारी समातें आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफ़िक़ीना युख़ादिऊना अल्लाह व हुवा ख़ादिऊहुम व इज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊना अन्नास वला यज़कुरूना अल्लाह इल्ला क़लीला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला वमन या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीना औलिया ला अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना इन्नल मुनाफ़िक़ीना फ़िद्दरकिल अस्फ़ली मिनन नार वलन तजिद लहुम
بصيرا صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ قاری صاحب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، اللہ آپ کے درجات بلند کرے. ناظرین، آج کا دن تاریخ کے آئینے میں دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف آئیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17واں روزہ آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. 17 رمضان کے اہم واقعات. 17 رمضان سن 2 ہجری کو اسلام کی پہلی جنگ بدر جو ہے وہ لڑی گئی. بدر ایک ایسے کنویں کا کہتے ہیں جو مدینے سے 135 کلومیٹر دور واقع ہے، اور وہ علاقہ اب تو وہاں رہائش ہے، اس زمانے میں ویران علاقہ تھا. اور وہاں مدینے سے 313 صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں اور 1000 کفار جو مکے سے آئے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. یہ پہلی جنگ تھی جو اسلام کے لیے لڑی گئی. اس میں اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے کہ 1000 فرشتوں سے مدد کی گئی مسلمانوں کی. 313 صحابہ کے معاملے میں بات آتی ہے کہ ان کے پاس صرف لاٹھی ڈنڈے تھے، چند اونٹ تھے، ٹوٹی ہوئی تلواریں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب آپ دیکھیے کہ ان صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو سب کچھ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سی کوشش کی، یہ تمام سامان اکٹھا کیا، 313 صحابہ کو لیا اور بدر میں جا پہنچے لڑنے کے لیے 1000 ہتھیار بند لوگوں سے. اور اس کے بعد وہاں پہنچنے کے بعد پھر حجرے میں اپنے گئے اور مسلح پکڑا اور اللہ کے آگے گڑ گڑائے. یہ ہے اصل سنت کہ ہم اپنی سی کوشش کریں، اس کے بعد پھر دعائیں کریں. ہم صرف دعاؤں کے چکر میں لگے رہیں گے تو یہ سنت ادا نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں دعا بھی کرنی ہے اور کوشش بھی کرنی ہے. اس جنگ میں کفار کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، اور 14 صحابہ بھی شہید ہوئے. اسی لڑائی سے جہاد کی فرضیت ہوئی مسلمانوں پر، جو قرآن میں اللہ رب العزت نے وحی نازل کی. 17 رمضان سن 57 یا 58 ہجری کو وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 18 رمضان کے اہم واقعات. 18 رمضان سن 21 ہجری کو مرد مجاہد سیف اللہ کے لقب سے مشہور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. یہ سن 8 ہجری میں ایمان میں آئے تھے، اور ان کا زیادہ تر وقت ایمان میں آنے کے بعد جنگوں میں گزرا. میدان جنگ میں تمام زندگی گزارنے کے بعد ان کی موت بستر پہ ہوئی، اور یہ اس بات کے لیے تڑپا کرتے تھے. لیکن آپ یہ اندازہ کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرد مجاہد کو سیف اللہ کہہ دیا ہو، سیف اللہ مطلب اللہ کی تلوار، اسے کون کاٹ سکتا تھا؟ کسی کی کیا ہمت تھی، کیا مجال تھی کہ وہ ان پہ وار کر سکے؟ تمام وار خالی جاتے تھے، تمام جنگیں وہ فتح کرتے تھے، اور بستر پہ اس طرح سے ان کی موت ہوئی ہے کہ وہ تڑپ تڑپ کے اپنے بچوں کے آگے کہتے تھے کہ کاش میں شہید ہوتا میدان جنگ میں. مگر سیف اللہ تھے تو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا. اور باقی جلیل و قدر صحابی سے بہت انہوں نے اسلام کو فتح دلائی ہیں. محدث امام جوہری کا انتقال 18 رمضان سن 50 ہجری میں ہوا. ان کا حافظہ بہت قوی تھا. انہوں نے 80 دن میں قرآن کو حفظ کر لیا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ 2 دن روزہ رکھنا ٹھیک نہیں، ایک عید الفطر کے دن اور ایک عید الاضحیٰ کے دن. آپ یہ دیکھیں کہ یہ 2 دن تہوار کے ہوتے ہیں. 30 روزوں کے بعد جب عید الفطر آتی ہے تو وہ انعامات کا دن ہے، جشن کا دن ہے کہ آخری رات میں اللہ رب العزت نے مغفرت فرما دی. 30 روزوں کے بعد جب یہ دن آتا ہے تو پھر شیطان جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے، وہ اس بات سے جلتا اور پھکتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے 30 روزے پورے کر لیے. تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. عید الفطر، یہ 2 عیدیں جو مسلمانوں کو دی گئی ہیں، یہ دونوں عیدیں اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت ہیں. وما علینا الا البلاغ.
मजाज साहब का शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर अपने स्टूडियो का रुख करते हैं। स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से नामवर आलिम-ए-दीन जनाब मौलाना रईसुद्दीन अज़हरी साहब का पुरतपा खैर मक़दम करते हैं। खुश आमदीद मौलाना साहब। एक बार फिर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब आपका भी इस्तक़बाल है। तो नाज़रीन, अशराए मग़फ़िरत हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब अपने अख्तिताम की जानिब गामज़न है और तीसरा अशरा रमज़ान मुबारक का जो कि जहन्नुम से निजात का है या छुटकारे का है, वो हमारी ज़िंदगियों में दाखिल हुआ चाहता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ़ किया करते थे और इसी मुनासबत से हमने आज एतकाफ़ को अपनी गुफ्तगू का मौजू बनाया है। एतकाफ़ एक घड़ी का भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है और एक अशरे का भी हो सकता है। एतकाफ़ का जो अमल है वो अपने अंदर बहुत ही वुसअत रखता है और इसके लिए आइए हम सीधे मौलाना साहब के पास चलते हैं और उनसे दरियाफ्त करते हैं कि मौलाना साहब अल्लाह की खुशनुदी और रज़ा के लिए, इबादत में यकसुई पैदा करने के लिए, पूरा ज्ञान और ध्यान लगाने के लिए, मुनहमिक होने के लिए एक मखसूस गोशा मुकर्रर कर लिया जाता है जिसे हम कहते हैं कि यहाँ मोतकिफ़ जो है वो एतकाफ़ करता है। तो ये अगर मसाजिद एतकाफ़ के लिए मुंतखब की जाती हैं तो उनकी फ़जीलत कई कई गुना बढ़ जाती है। तो मसाजिद में एतकाफ़ कैसे किया जाए, उसका तरीक़ा क्या है, कब से होता है और कब तक किया जा सकता है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जी सलाम और सन फार्मा की तरफ से तमाम रोज़ेदारों को तवज्जो दिलाई जाती है कि सहरी के वक्त में अपनी मामूल की दवाएं लेना न भूलें ताकि आपका दिन सुकून से गुजरे और रोज़ा भी सहूलत से पूरा हो जाए। एतकाफ़ के सिलसिले में पहली चीज़ तो यह है कि एतकाफ़ का जो लफ्ज़ है उसके अंदर जम के बैठना शामिल है। कुरान मजीद में एक जगह जो हुज़ूर अकरम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके चले तो वहाँ कुछ लोगों को देखा रास्ते में कि वो अपने बुत पर जमे बैठे हैं। तो कुरान मजीद में उसका जिक्र किया गया, याकिफूना अला असनामिन लहुम, वो अपने बुतों पर जमे हुए बैठे थे। तो एतकाफ़ का मतलब ही होता है सारी चीज़ों से गैर मुताल्लिक़ होकर, तमाम रिश्ते नाते तोड़ कर आदमी किसी चीज़ से पूरी तरह मुनहमिक होकर वहाँ बैठ जाए। एतकाफ़ मस्जिद में हो सकता है और मस्जिद भी वो होनी चाहिए जिसमें 5 वक्त की नमाज होती हो। इसलिए कि अगर ऐसी मस्जिद हुई कोई वीरान, वहाँ आदमी नमाज पढ़ेगा तो बहुत अच्छी बात है, मस्जिद आबाद हो रही है, लेकिन वहाँ बाजमात नमाज नहीं हो सकेगी। इसलिए ऐसी मस्जिद का होना ज़रूरी है जिसके अंदर 5 वक्त की नमाज होती हो। अगर जामा मस्जिद है या बहुत बड़ी मस्जिद है तो ज़्यादा फजीलत है, वरना ऐसी छोटी मस्जिद भी उसमें एतकाफ़ किया जा सकता है। जी, बेहतर कब है मौलाना साहब, कब से शुरू किया जाए एतकाफ़? देखिए, एतकाफ़ की बहुत सी किस्में हैं। जो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया ख़ास एतकाफ़ है जो रमज़ान के आखिरी अशरे में होता है, उसका टाइम है 21वीं शब शुरू होने से पहले शुरू हो जाना चाहिए। यानी 20 की शाम को अपना बिस्तर बोरिया लेकर लोग मस्जिद में पहुंच जाएं और चांद होने तक, चाहे 29 का चांद हो या 30 का हो, ईद का चांद होने तक उनको मस्जिद में ही रहना है, उन तमाम हिदायत की पाबंदी करते हुए जो बताई जाती है। जी मौलाना साहब, हिदायत के लिए ज़रूर आएंगे आपकी तरफ, लेकिन हम आते हैं कि ख़वातीन के अंदर भी ये जज्बा होता है, वो भी चाहती हैं कि हम भी इस फजीलत से महरूम ना रहें। लेकिन अल्लाह ताला ने ये कहा है कि ख़वातीन के लिए बेहतरीन जगह घर है, और वो भी बिल्कुल ऐसी जगह जहाँ उनको तन्हाई और यकसुई और पर्दा मुयसर हो सके। तो ख़वातीन अगर एतकाफ़ करना चाहें तो अब जाहिर सी बात है ख़वातीन पर पूरे घर के कामों की ज़िम्मेदारी भी होती है, छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनके लिए क्या हुक्म है? एतकाफ़ कितने दिनों का हो और किस तरह किया जाए? नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एतकाफ़ एक बहुत अजीम इबादत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स एतकाफ़ करता है उसके लिए मेरी तरफ से जन्नत की खुशखबरी है। और ये जन्नत की खुशखबरी सिर्फ मर्दों के लिए ही क्यों सीमित रहे, इसमें औरतों की भी हिस्सेदारी पूरी शामिल होनी चाहिए। इसीलिए औरतों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये एतकाफ़ हमारे लिए रखा, तो इसमें उलमा ने यही बयान फरमाया कि औरतें जो एतकाफ़ करेंगी वो अपने घर के अंदर करेंगी और घर के अंदर भी एक मखसूस हिस्सा हो, एक कोना हो, उसको इख्तियार कर लें कि यहीं पे वो नमाज़ पढ़ती हों और इसी जगह पे वो अपने एतकाफ़ को मुकम्मल करें। ऐसा ना हो कि एक जगह मुकम्मल बना ली एतकाफ़ के लिए और घरों में घूमती फिरें। एतकाफ़ जैसे कि मौलाना साहब ने बताया कि एक जगह जम कर बैठ जाने का नाम है,
तो वहीं पे आपको इत्तिकाफ करना है। सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो शरई आपको इजाज़त दी गई है, वो इस्तिंजा वगैरह के लिए और क़ज़ाए हाजत के लिए आप जा सकती हैं, इन सब चीज़ों में आपको इजाज़त है। लेकिन आप घर के अंदर एक जगह पे बैठ के अल्लाह की इबादत करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इत्तिकाफ को मुकम्मल तौर पे कबूल फरमाए। जी, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत क्या हो सकती है मौलाना साहब, और कम से कम मुद्दत कितनी हो सकती है ख़वातीन के लिए? देखिए, इसमें ज़्यादा की कोई मुद्दत नहीं है, कम की भी कोई मुद्दत नहीं है। जी। 1 सेकंड का आदमी जो है इमाम साहब से मुलाकात के लिए हुजरे में जाने के लिए आया, मस्जिद में से गुजरा, उसमें एतकाफ कर ली, नियत कर ली, यहाँ से वहाँ तक चला, आधा मिनट लगा, इतना आधे मिनट का एतकाफ हो गया उसका। और ज़्यादा से ज़्यादा की बात यह है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शुरू में एतकाफ फरमाया था मदीना मुनव्वरा आने के बाद, वो असल में वो शब कदर की तलाश उसमें मकसद थी। हाँ। तो आपने पहले 10 दिन का एतकाफ किया, उसमें वो नहीं मिली, फिर दूसरे 10 दिन का एतकाफ किया, उसमें नहीं मिली, फिर तीसरे 10 दिन का एतकाफ किया, उसमें मिली, तो उसके बाद से फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन का किया। तो ये जो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया जो ख़ास एतकाफ है, जो यही 10 दिन होते हैं उसके लिए, ये एतकाफ 10 दिन का होता है। बाकी उसके अलावा कोई आदमी महीने भर एतकाफ करे वो भी कर सकता है, ज़्यादा करे कम करे, बिल्कुल। और आम तौर पर मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी जब भी मस्जिद में जाए नमाज पढ़ने के लिए, तो ध्यान रखने की बात है और करना कुछ नहीं, वहाँ जाके ध्यान रखे कि मैं मस्जिद में दाखिल होते ही एक तो दुआ पढ़ूँ, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, जो मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है, और एतकाफ की नियत कर ले आदमी। तो जब तक वो मस्जिद में रहेगा एतकाफ चलता रहेगा, जब मस्जिद से निकला वो पूरा हो गया। सुभान अल्लाह। मौलाना साहब, जैसे हम उन पाबंदियों या नज़ाकतों की तरफ भी ज़रूर आएंगे जो कि एतकाफ़ के दौरान लाजमी तौर पर जिन्हें मलहूज़ रखना चाहिए, लेकिन आपने फरमाया सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया, यानी ये अपनी इस्तिताअत के मुताबिक या अपनी ताकत के मुताबिक कोई भी शख्स एतकाफ़ कर सकता है। अगर पूरी बस्ती में कोई शख्स एतकाफ़ नहीं करता है तो उसके लिए क्या अज़ाब या वईद है? पूरी बस्ती में से अगर कोई आदमी एतकाफ़ नहीं करता है तो पूरी बस्ती वाले इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत को नज़रअंदाज किया। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर फ़र्ज अमाल में से किसी अमल को कभी करते कभी छोड़ देते थे, लेकिन एतकाफ़ एक ऐसा अमल है जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए उस वक्त से और आखिर हयात तक आपने इसकी पाबंदी की है। ऐसी अहम सुन्नत है। कोई आदमी अगर एक भी पूरे गाँव में या पूरे महल्ले में कोई आदमी एतकाफ़ नहीं करता है तो सारे लोग जो हैं इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को उन्होंने छोड़ दिया। अलल किफ़ाया का मतलब यही है कि एक आदमी अगर कर लेता है तो सब की तरफ से काफ़ी हो जाएगा। बिल्कुल। अब आते हैं कुछ उन पाबंदियों और नज़ाकतों की तरफ, कुछ आपसे जानेंगे, कुछ मौलाना साहब से जानेंगे। एक शख्स है जो मस्जिद में दाखिल होता है, जैसे मौलाना साहब ने फरमाया कि दुआ पढ़ के दाखिल हो गया, अपना ज़रूरी सामान लेता आया है, और उसके बाद वो अल्लाह की इबादत में किस तरह मुस्तग़रिक़ हो जाए, किस तरह मुनहमिक हो जाए कि जो दुनियावी अलाइक़ हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो गैजेट्स हैं, इन तमाम चीज़ों से उसका राब्ता मुनक़ता हो जाए, टूट जाए और सिर्फ अल्लाह से लौलक जाए। जी बिल्कुल। देखिए, जो कि हमारा एतकाफ़ है उसका मकसद ही यही है कि आप दुनिया व माफिया की जितनी भी चीज़ें हैं सबसे अपना मुड़ मोड़ लीजिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हो जाइए। आम ज़िंदगी में हम क्या करते हैं कि रोज़ाना अपने मामूलात में मुनहमिक रहते हैं, कारोबार में लगे रहते हैं, बच्चों में और दुनिया की तमाम तर चीज़ों में, और हमें ये फ़िक्र नहीं होती कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हो मुकम्मल तौर पे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। वो तो इतनी मोहब्बत फरमाता है कि जैसा कि एक वाक़या भी मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया कि मेरे सहाबा, एक शख्स ऐसा है जो कि बयाबा में गुजर रहा है और उसके सामने से उसके सारे साजो सामान ख़त्म हो गए हों और जो जा चुके हों, उसको सिर्फ मौत का इंतज़ार है। अब वो सिर्फ सोता है और आंख खोलता देखता है कि उसके सारे सामान मौजूद हैं। तो अब मौत के बाद उसे ज़िंदगी जो मिलने वाली, उसकी खुशी इतनी हुई कि उसकी ज़बान से ये कलिमात निकले कि लाह अलमीन तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। माज़अल्लाह, उसकी ज़बान से ऐसे कलिमात निकले। तो बताओ मेरे सहाबा, वो बंदा कितना खुश हुआ होगा। सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहा बस यही हाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है कि जब बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर होता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस शख्स से ज़्यादा खुश होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमें हाजिर होना ही चाहिए और दुनिया के ये मामूलात जो हमें छोड़कर उसकी बारगाह में हाजिर होकर एक वक्त ऐसा गुजारें ताकि सिर्फ हम अल्लाह के सामने हों और अल्लाह हमारे सामने और दुनिया की कोई चीज़ ना हो। बिल्कुल। मौलाना साहब, अब जाहिर सी बात है इंसान है तो कुछ ज़रूरियात भी हैं, उन ज़रूरियात को भी इस तरह अदा करना कि वो इबादत में मुखिल ना हो, उनके लिए कैसे क्या किया जाए? देखिए, खाना पीना ये ज़रूरतें हैं, उनके लिए मस्जिद के अंदर ही खाना पीना होगा,
مسجد کی صفائی کا خیال رکھتے ہوئے دسترخوان بچھا کے کوئی گندگی نہ ہو، اور اس کے لیے باہر نہیں جا سکتے. پیشاب پخانے کے لیے باہر جا سکتے ہیں اگر مسجد کے اندر انتظام ہے، جیسا کہ عام طور پر مسجدوں میں ہوتا ہے، اور اگر کہیں نہیں ہے تو وہ اپنی ضرورت کے لیے کہیں باہر بھی جا سکتا ہے، اپنے گھر بھی جا سکتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو. اگر مسجد میں یا اس کے آس پاس کوئی جگہ نہیں ہے، اگر اس کے بھائی کا یا قریبی آدمی کا کوئی ایسا انتظام گھر کے مسجد کے پاس ہے تو وہاں جانا چاہیے، ورنہ اپنے گھر بھی جا سکتا ہے. غسل کے لیے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ باہر جائے گا، اپنی ضرورت سے فارغ ہوگا، آ جائے گا، کسی اور کام کے لیے ٹھہرے گا نہیں. گھر پہ کسی سے بات چیت گزرتے ہوئے کر سکتا ہے، گھر میں ٹھہر کر بات نہیں کرے گا. بات چیت کرنے میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ٹھہرنا جائز نہیں ہے. یا وضو کرنے کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتا، پیشاب کرنے کے لیے ضرورت پڑی، گیا وہاں سے وضو کرتا ہوا آ گیا تو اس طرح سے کر سکتا ہے. باقی اس کے ہاں بیٹھ کر تمام پوری توجہ، دنیا کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی. چائے پینے کے لیے مثال کے طور پر ہوٹل برابر میں ہی ہے، چائے والا ہے، سامان مسجد میں لا کر خریدنا یہ مسجد کے اندر خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اتنا ہو سکتا ہے کہ چائے اس سے منگوا لی، پیسے بعد میں جمع کر دیے جائیں گے. وہ چائے لے کے آئے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بڑی مسجدوں کے اندر چائے والا چائے لے کے آتا ہے، وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے، لوگ اس سے خریدتے ہیں، پیسے اسے دیتے ہیں. یہ بالکل جائز نہیں ہے. مبی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مسجد کے اندر نہیں آنی چاہیے. چیز بھیج دی، پیسے بعد میں چلے جائیں گے. خرید و فروخت کا پورا عمل مسجد کے اندر نہیں ہونا چاہیے. باقی اس کے علاوہ کچھ دنیا کی بات چیت نہ ہو، کاروباری فون پہ کاروباری بات چیت نہ ہو. فون آیا، فون یا تو بند رکھیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی بہت ضروری چیز کے لیے گھر سے کوئی فون آ گیا، آپ نے مختصر سی بات کر کے رکھ دیا، اتنا جائز ہے. لیکن کاروباری معاملات اور ساری چیزیں وہاں بیٹھ کے اگر کرتے رہے تو وہ انقطاع کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. بالکل صاحب. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کی کچھ نشانیاں بتا دی گئی تھیں، لیکن آپ جیسے ہی باہر نکلے دو صحابہ کو آپس میں جھگڑتے دیکھا اور وہ علامتیں فراموش ہو گئیں. تو مقصد یہی تھا کہ آخری 10 راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے، اور وہ بھی طاق راتوں میں. تو یہ جو آخری عشرہ ہے یہ شب قدر کی تلاش کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ بالکل. دیکھیے یہ تو ایک انعام ہے بندوں کے لیے کہ انہیں جو اعتکاف ملا وہ بھی آخری عشرے میں ہی ملا، چونکہ شب قدر بھی آخری عشرے میں ہی جو ہے تلاش کرنے کا حکم ملا ہمیں. تو ہمیں جو اعتکاف کی جو نعمت ملی، ہمیں چاہیے کہ اس اعتکاف کو مکمل طور سے اس کا استفادہ کریں، تاکہ جب ہم اعتکاف کی نیت سے جب مسجد میں جائیں تو چونکہ اس میں فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اعتکاف کی نیت میں مسجد میں چلے گئے اور آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جو فرائض ہیں، جو نوافل پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ آرام بھی کر رہے ہیں مسجد کے اندر تو بھی آپ کا نام اعمال میں آپ کی نیکیاں ہی لکھی جاتی ہیں. تو اس وقت بھی آپ ایک طرح سے عبادت میں ہیں. اب چونکہ شب قدر اس میں آنی ہی آنی ہے تو اب شب قدر بھی آپ کو مل رہی ہے. چونکہ اگر آپ گھر پہ ہوتے ہو تو شب قدر آپ کو ملے نہ ملے کوئی آپ کو ضروری نہیں، لیکن مسجد میں آپ ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ہیں اور شب قدر اس میں آ رہی ہے، تو اللہ کا یہ انعام آپ کے اوپر ہے، معتکفین کے لیے اور جو اعتکاف کرنے والے ان کے لیے. جی انشاءاللہ شب قدر کے بارے میں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، عبادت کے طریقوں پہ بہت ساری گفتگو انشاءاللہ ہوتی رہے گی آگے. 2 کالرز ہیں فون لائن پہ، ان سے بات کر لیں. پہلے چمن آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے سوال کیا ہے. چمن ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال بتائیے. آپ کو ہمارا سلام دیں. جی ہلو. ہاں سوال بتائیے. سوال یہ ہے میڈم کہ ہماری ہے نا، یہ ہم نے زمین لی تھی، مکان، ان کا بھائی ہے، وہ بھائی کا لڑکا ہے ہمارے کابین کا. جی تو وہ زمین ہے نا اس کی عورت کے نام کرا دی تھی، ہم نے بیچنے کے لیے لی تھی وہ، تو اس کی عورت کے نام کرا دی. تب آج لیے 10-12 سال ہو گئے نہ، 2 سال سے ہم نے بیچنے لی تھی. اب بیچنے کی دے تو نہیں بیچنے دے رہا، کرایہ سے رکھنے کی دے تو نہیں کر رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا. 2 سال سے میں پریشان کر رہا تھا اس نے بہت زیادہ، تو بہت زیادہ کام کرا کہ نہیں دو. میری عورت کی نام ہے. ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا. تھوڑا سا انتظار. شگفتہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. جی آپ کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. جی مولانا حضرت ہمیں یہ بات پوچھنی ہے کہ وہ جو اذان ہوتی تھی مغرب کی اور اس کے لیے شہری کے مطابق، تو حضرت کیوں رکوا دیے ہیں؟ عورتیں لوگ ایسے کرتی ہیں، بعض لوگ کو تکلیف ہو رہی ہیں، جیسے نیچے میں مکان ہے، فرش پہ مکان ہے، آواز نہیں پہنچتی ہے. اس کے لیے ان سے میں ہاتھ جوڑ کے ونتی کرتی ہوں کہ تھوڑا مطلب اذان کی آواز بڑھوا دیں.
पहले के और सवालात और जवाबात के सिलसिले की जानिब हम बढ़ें, आपको सहारनपुर लिए चलते हैं और देखते हैं कि अतहर सईद साहब आज रमज़ान की रौनकों के बारे में हमें क्या दिखा रहे हैं। सहारनपुर का ये है इलाका पुल कमोहान, लेकिन चूंकि इस वक्त तरावी के बाद हम निकलते हैं जायकों की तलाश में, तो सहारनपुर के जायकों में नुमाया नाम है इलियास त्यागी साहब की इस नहारी का। और ये नहारी देखिए देग में बनाई जाती है। कितनी देर तक बनाई जाती है इलियास साहब से पूछता हूँ, क्या तरीका है इलियास साहब बनाने का और कितनी देर में तैयार हो जाती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निहारी की जहाँ तक बात है, ये लगभग 10-11 घंटे में तैयार होती है। सुबह इसको सुबह 7 बजे हम शुरू करते हैं, लगभग 5 बजे तक शाम के इसको फिर हम निकालते हैं देर से। और इसकी बिक्री कब से शुरू हो जाती है? बिक्री इसकी मगरिब की नमाज के बाद हमारे यहाँ, हम बेहतर यही समझते हैं कि मगरिब की नमाज के बाद हम इसको शुरू करते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है मुझे। कौन से मसाले इस्तेमाल करते हैं? इसमें ज्यादातर जड़ी बूटियाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ये समझिए इलायची भी है, गरम मसाले के पूरे अज्जा हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी हर्बल्स हैं इसमें। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है इनकी नहारी इलियास साहब की? बढ़िया बढ़िया। आप बताइए कैसा जायका है इसका? जी जाएगा तो बहुत खूबसूरत है। अच्छा, कब खाना पसंद करते हैं? बस इस टाइम ही खाना पसंद करते हैं। नहारी खिलाई जाए जनाब। उम्दा जायका है ये जायके सहारनपुर के हैं और ये नहारी का जायका है इलियास त्यागी साहब का। तो नाज़रीन, यकीनी तौर पर खुश रंग तो थी ही, खुश जायका भी होगी, और क्यों ना हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे मसालों के साथ साथ जैसा कि उन्होंने कहा कि जड़ी बूटियाँ यानी जो हर्ब्स हैं वो भी डाली जाती हैं, तो यकीनी तौर पर जायका दोबाला हो जाता है। 2 कॉलर्स और हैं हमारे साथ, पहले सना से मुखातिब हैं और उसके बाद इंशाल्लाह खदीजा साहिबा आपसे भी बात करेंगे। सना बताइए सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी मेरा आपसे 3 सवाल है। आंटी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे हमारी अम्मी एहतिकाफ में बैठे हैं तो वो क्या अपने हस्बैंड से और अपने बच्चों से पर्दा करेंगी, और एहतिकाफ में बैठने की नियत कैसे करनी है, क्या दुआएं पढ़नी है? और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप बारिश के लिए दुआएं करना। और मेरा तीसरा सवाल आपसे है कि जैसे साला साहब को उन आंटी ने कहा बोला था कि वो फोन ना करे, तो साला साहब को कोई फोन नहीं लग रहा है, तो क्या वो नाराज है क्या? ठीक है सना, बहुत अच्छा, आपका जो जज्बा खैर सगाली है ये बहुत प्यारा लगा। खुश रहिए, सलामत रहिए, थोड़ा सा इंतजार। खदीजा आप बताइए आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि जैसा कि आप लोगों ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ज़कात के बारे में बताया है कि 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी हो या रुपया हो जो निसाब तक पहुंचे। अब मेरा सवाल ये है कि माल तिजारत पर भी क्या ज़कात वाजिब होगी, जैसे जो बिजनेसमैन अपनी दुकानों में माल बेचने के लिए रखते हैं या ज़मीन या मकान बेचने का ही काम करते हैं, और इसके बारे में कुछ बताएं। और दूसरा सवाल ये है कि कुछ चीज़ों की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है। अब जैसे चीन में इस्लाम को ख़त्म किया जा रहा है, चाहे रोहिंग्या मुसलमानों का हाल हो या दुनिया भर में मुसलमानों का जो हाल हो रहा है, इसके बारे में मौलाना सब कुछ बताएं। ज़रूर इंशाल्लाह, थोड़ा सा इंतज़ार। पहले तो ज़कात माल तिजारत पर या जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, ज़मीन वगैरह की ख़रीदो फरोख्त करते हैं, उनके लिए ज़कात का निसाब क्या है? देखिए, बाकी चीज़ें तो इनको मालूम ही है, इनको पूछना है माल तिजारत जो दुकान में है, कारखाने में है, जो माल तिजारत है उस सब का हिसाब लगाया जाएगा, और जो एहतियात से बाकायदा अदा करते हैं वो 1-2 दिन छुट्टी करके सारा काम बंद करके अंदर अंदर सारे माल की गिनती करते हैं। कपड़ा है तो उसकी पैमाइश करते हैं, वो सब करके फिर उसके बाद मालियत लगाकर उस पर ज़कात अदा करते हैं। ज़मीन जायदाद में थोड़ा सा फ़र्क है। जो मकान हमने अपने रहने के लिए लिया है और उसमें रिहाइश चाहे अभी नहीं है, बंद पड़ा है, लेकिन बच्चे की शादी होने वाली है 1-2-4 महीने के बाद, और उसके लिए हमने मकान लिया है, वो हम उसमें वहाँ रहेंगे, चाहे वो खाली पड़ा हुआ है चाहे उसमें रह रहे हैं हम, उसके कोई ज़कात नहीं है। ज़कात है उस मकान या ज़मीन की जो हमने तिजारत के लिए लिया है। हमने ये सोच के लिया है कि मकान ले लेते हैं और मुनासिब दाम पे इसको बेच देंगे, 1 लाख का लिया 1.5 लाख का बिक गया, तो इस तरह से हम अगर मकान या ज़मीन प्लाट लेते हैं उस पर भी ज़कात है, और अगर उसे हमने रहने के लिए लिया है तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला इस बात को जानता है कि तुमने कौन सा किस काम के लिए लिया है। मामला अल्लाह ताला से है, किसी दुनिया वाले से नहीं है जो बेखबर है हमारे हालात से। बिल्कुल साहब। दूसरा सवाल जो खदीजा का है कि इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है। इससे पहले बनी इसराइल के जो हालात गुजरे हैं वो भी हम सबके सामने ही हैं। जब नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने अजाब मुसल्लत किया, और जब तौबा किया सच्चे दिल से
तो अल्लाह ताला ने फिर उनको अजाब से निजात भी दे दी। मुसलमानों के जो हालात हैं वो किसी से पोशीदा नहीं है, तो ये कि किस वजह से इन हालात का या इस ज़िल्लत और रुतबत का शिकार है मुसलमान? देखिए, ये जो हालात हमारे हैं वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपनी शरीयत मुतहरा को सही से उसका मुताला नहीं कर रहे, हमारे पास शरीयत के अहकाम सही से पहुँचे नहीं, या हमने आगे बढ़ के उनको जाना नहीं। दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो तरबियत होती है, ये तरबियत सबसे ज़्यादा हमारे लिए अहम रोल अदा करती है कि हम अपने मामलात कैसे लोगों के साथ कर रहे हैं। अगर हमारे वालिदैन ने अपने मामलात बेहतर नहीं रखे, उन्होंने अपने दरमियान जो भी मामलात लोगों से किए, लेन देन किया या जो ताल्लुकात रखे, सलाम दुआ, इबादतों का जो ताल्लुक है, अगर उनका बेहतर नहीं रहा तो वही असर बच्चों में भी आता है। फिर माँ बाप को ये शिकायत होती है कि बच्चा हमारी नाफरमानी करता है, इसके मामलात बेहतर नहीं है, ये बातें नहीं मानता। तो माँ बाप को पहले ये गौर करना होगा कि हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है, अपने बच्चे के सामने हमने कौन सा उसवा पेश किया है कि वो हमसे सीखता। तो इसलिए बेहतर यह कि पहले माँ बाप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाए ताकि बच्चा भी उन्हीं के सांचे में ढले और उसके मामलात भी बेहतर से बेहतर हों। बिल्कुल। एक बात यहाँ मैं ये बता दूँ, इनके सवाल का एक हिस्सा ये भी है कि अल्लाह ताला ने हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। मुसलमान की हिफाजत की जिम्मेदारी उसने नहीं ली है, इस्लाम की, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी उसने ली है। अगर मुसलमान ने इस्लाम और कुरान को नहीं संभाला, नहीं उसकी पाबंदी की, तो उसके ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं आता कि अल्लाह ने उसकी हिफाजत नहीं की। है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। अपने आप को ताकतवर बनाना, अपने आप को लोगों के लिए भी और अपने लिए भी नफ़ा बख्श बनाना, ये भी एक जिम्मेदारी थी। जिन लोगों का इन्होंने जिक्र किया है, हमको और सारी दुनिया के लोगों को उनसे हमदर्दी है, लेकिन अपने आप को कमज़ोर रखना और कमज़ोर होते चले जाना और अपने आप को अपने लिए और दूसरों के लिए नफ़ा बख्श न बनाना, ये चीज़ भी एक बहुत बड़ी कोताही है। कुरान मजीद में एक बड़ा बुनियादी उसूल कहा गया है, वअम्मा मा यनफ़उन्नास फयमकुसु फिल अर्ज़। जो लोग, जो चीज़, जो भी मखलूक इंसानियत के लिए नफ़ा बख्श है, वो रुए ज़मीन पर ठहरती है, उसको बका और दवाम हासिल होता है। हाँ, आदमी को अपनी मजबूती इस तरह से बनानी चाहिए कि हम अपने लिए नफ़ा बख्श हो, दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। और दूसरी अमाल की दुरुस्तगी मौलाना साहब बहुत ज़रूरी है। अमाल बहुत सारे हैं, सिर्फ नमाज रोज़े की बात नहीं, सारी चीज़ें इस्लाम की अपनाना ज़रूरी है। बिल्कुल। अमाल बहुत खस्ता हो चुके हैं, पामाल हो चुके हैं, उनकी इस्लाह की ज़रूरत है। तैयब, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? सवाल है बाजी। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। पहला सवाल है कि मेरे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बात बात पे कलाम पर कसम खाते हैं, बेअदबी करते हैं। एक 14 साल का है, 15 साल का है। और दूसरा सवाल, ये कसम खाना नहीं खाना, कल तो रात कलाम पाक पे हाँ कसम खाई, कलाम पाक पे 2-3 हाथ जोर जोर से मारे हैं और हम उससे बहुत परेशान हैं। सिर्फ दुआ बताइए कि बच्चे हमारी बात सुने, समझे। रोजा भी रहता है लड़का, लेकिन एकदम बहुत गुस्से में आके परेशान करता है, बेअदबी बदजबानी बोलता है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह ताला आपके हालात बेहतर करे और बच्चों को हिदायत दे। थोड़ा सा इंतज़ार। अब्दुल मन्नान भाई, आप बताइए, आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल ये है कि मरने के बाद अल्लाह ताला जो करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन रोजे महशर के दिन हम लोग जब वहाँ पहुँचेंगे तो हम अपने माँ बाप से मिल सकते हैं कि नहीं? हमारे जितने कुलबा खानदान है, चाहे हमारे बीवी है, लड़के हैं, बच्चे हैं, महशर के दिन हम लोग एक दूसरे को देखेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और एक बात यह है कि कुछ पैसे हम लड़की के शादी के लिए रखे हैं, तो उस पर ज़कात हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? वो जो पैसे आपने रखे हैं उसके, वो किसकी मिल्कियत में है? आपकी मिल्कियत में है, लड़की की मिल्कियत में है? वो अभी तो वैसे बैंक में है, लेकिन लड़की की शादी करने के लिए रखा हुआ, अभी कहीं रिश्ता नहीं हो रहा। जी मौलाना साहब, दोनों जो सवाल हैं, ये हमें ऐसा महसूस होता है ये सवालात हम पहले ले चुके हैं। आपने बताया भी था कि रोज़े हशर में जो है वो अपनी ही फिक्र होगी, किसी को पहचानने की पहली बात तो ये है कि रोज़े महशर में तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है, यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनी। बेटा, बेटी, बहन, भाई सब एक दूसरे से बेताल्लुक़ होंगे, कहीं कोई रिश्ता नाता नहीं होगा। और वो दिन ऐसा होगा और वो वक्त ऐसा होगा कि अपने अपनी में पड़ा होगा, सब भूल जाएंगे। इसलिए उसकी तो तैयारी करनी चाहिए। वो वक्त अल्लाह ताला आराम आफियत से गुजारते तो फिर जन्नत में इंशाअल्लाह ताला सब एक दूसरे से मिलेंगे। ज़कात के बारे में, और ज़कात के मामले में जो पैसा आपने रखा है, जाहिर है किसी न किसी मकसद से ही रखता है। आपने चाहे बच्ची की शादी के लिए रखा हो, हमारे बहुत सारे भाई इस तरह बोलते हैं इस सवाल को कि वो पैसा तो हमने इस काम के लिए रखा है, उसमें लगेगा, हम अपने लिए थोड़ी रखे हुए हैं। तो जो पैसा रखा हुआ है, चाहे वो किसी मकसद से भी रखा हुआ है, जब उसके ऊपर
वो निसाब को पूरा पहुंचा हुआ है और उसके ऊपर वक्त हौलान हाल साल भर गुजर गया है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। और आप ये ना सोचिए कि बार बार ज़कात देंगे तो माल कम हो जाएगा, अल्लाह ताला फरमाता है बढ़ जाएगा। यमहक़ुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, खुदा पाक सदक़ात को बढ़ाता है। जी मौलाना साहब, एतकाफ़ के दौरान जैसे इन्होंने कहा कि वालिदा अगर एतकाफ़ करना चाहती हैं तो किस किस से पर्दा करें, शौहर और बच्चों से भी पर्दा करना होगा? देखिए पर्दे का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ पे पर्दा ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल पर्दे में रहना है और कोई आपको देख ना सके, ऐसा नहीं है। आप एक कोने में रहें, आप उनसे ज़्यादा बातचीत ना करें, गैर ज़रूरी बातें ना करें। बाकी आप उनके अगर सामने वो आपको देख पा रहे हैं या आप उनको देख पा रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जी एतकाफ़ की नीयत आपने बताई थी मौलाना साहब, एक बार दोहरा दीजिए। देखिए एतकाफ़ की नीयत के लिए कुछ मखसूस अल्फाज नहीं है, बल्कि मैं अपने लोगों को बताऊँ, हमारे पूरे एशिया में तकरीबन यह है नवैतु अन उसल्लिया लिल्लाहि ताला फला रकात वगैरह जो है ये सब गैर ज़रूरी चीज़ है। नीयत के लिए कोई अरबी के अल्फाज ज़रूरी नहीं, उर्दू के अल्फाज भी ज़रूरी नहीं। दिल में ये सोच ले आदमी कि मैं एतकाफ़ कर रहा हूँ, मैं एतकाफ़ कर रही हूँ, और एक गोशा अपने लिए मखसूस कर ले, कोई तख्त है या कोई बेड बिछा हुआ है, लेकिन चूँकि उसी में नमाज भी वो पढ़ेंगी इसलिए उसके ऊपर अगर बहुत मोटा गद्दा हुआ तो उस पर नमाज नहीं हो सकेगी, सजदा सही नहीं होगा। इसलिए एक हिस्सा उसका ऐसा ज़रूर कर लें कि जो सर टिक जाए और ज़्यादा गद्दे के अंदर ही ना सजदा गुम हो जाए। जी शगुफ्ता साहब फरमाइए, सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी आंटी आप बहुत अच्छी हो। मेरा मौलाना अब्दुल्ला तालिक से एक सवाल है। मुझे एक ख्वाब दिखा था, ख्वाब में मुझे बहुत मोटा सांप दिखा था, जैसे कि वो हमारी लाइट के बोर्ड में टंग रहा है और हमारे घर एक औरत आई हुई है तो वो अम्मी के साथ में लेटी है, तो हम कह रहे हैं कि ये इस सांप को ना देख ले। तो वो एक ही टाइम में ना मुझे 3 जगह सांप दिखा है घर में रखा हुआ, पर मैं उससे डरी भी नहीं और मैं उसके ऊपर हाथ रखती हूँ। ठीक है शगुफ्ता, थोड़ा सा इंतजार। नदीम भाई आप बताइए आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुझे दरियाफ्त करना था, मैं सवाल मालूम भी किया था। एक रिश्ते की बहन है और वो काफी मदद के लायक है जी, साहिब निसाब नहीं है, उन पर कुछ कर्जदारी है सूदी। तो मैं दरियाफ्त करना चाह रहा था कि उसमें से ज़कात की मद में से उनको मदद की जा सकती है या नहीं, और ये एक हमारे दोस्त हैं उन्होंने सवाल दरियाफ्त कराया था मुझसे। ठीक है जी मौलाना साहब। जी देखिए, एक तो जो सूद का मामला ये एक अलग मामला है और जो उन पे कर्ज है ये एक अलग है। ये दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं कर सकते। जो उन्होंने सूद लिया है या सूद पे कर्ज लिया है तो ये उनका अलग मामला है, तो सूद से तो बचने का हुक्म है बहरहाल। लेकिन जहाँ तक कर्ज का मामला है, अगर आपकी बहन है और आप अपनी ज़कात के पैसे से उनके कर्ज को चुकाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल चुका सकते हैं। बेहतर चीज़ यही है कि आप अपने करीबी रिश्तेदारों को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाएं, यही असल ज़कात का मकसद है। बिल्कुल, कर्ज से भी जान छूटेगी और सूद की लानत से भी जान बच जाएगी। मौलाना साहब ख्वाब जो है सांप से मुताल्लिक, उसकी ताबीर बताइए। अजीब बात यह है कि अब तक जो हमारे पास ख्वाब के इस तरह के ख्वाब आते हैं हम उनकी ताबीर दिया करते हैं कि एक दुश्मन है, ऊपरी असरात हैं, ये हैं। लेकिन इस ख्वाब में चूंकि इन्होंने हाथ लगाया है, इनसे डरी नहीं है, इसका मतलब यह है कि दौलत है, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनके माली हालात बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। तब तो ये ख्वाब बहुत उम्मीद अफजा है। अजान के मुतालिक एक बहन ने कहा है कि उसकी अगर आवाज़ नहीं पहुंचती है तो कुछ दिक्कत होती है, तो कुछ ऐसी मुनासिब अंदाज में आप अपील कर दें लोगों से कि इनकी परेशानी दूर हो जाए। देखिए, अपील आपकी तरफ से हम मस्जिद वालों से करना चाहिए। हमें मस्जिद वाले हजरात इस बात का हमेशा खुद ही ख्याल रखते हैं कि लाउड स्पीकर का रुख ऐसा रखें कि जिधर आबादी ज़्यादा है उधर रुख हो। मिसाल के तौर पर कुछ आबादी इधर भी ज़्यादा है, कुछ इधर ज़्यादा है, तो वो 3-3 लगाते हैं, 4-4 लगाते हैं। इसलिए ये अपने पड़ोस की मस्जिद वालों को तवज्जो दिला दें कि हमारी तरफ आवाज़ नहीं आ रही है। तो लाउड स्पीकर अगर उनके पास एक ही लगा हुआ है तो उनसे कहें कि एक जिधर लगा हुआ है उधर रहे और एक हमारी तरफ भी लगा दिया जाए। मस्जिद के इंतज़ामिया को इसका ख्याल रखना चाहिए, जहाँ के भी हैं, जहाँ के बहन बोल रही हैं वो भी और दूसरे हजरात भी इसका ख्याल रखें कि आबादी अगर बड़ी हो गई है तो सिर्फ एक वो काफ़ी नहीं होगा, मुनासिब आबादी तक आवाज़ पहुँचनी चाहिए। ये तो मुश्किल है कि हर घर बराबर आवाज़ पहुँचे, लेकिन बहरहाल मस्जिद वाले इस बात का एहतमाम करते हैं, उन्हें करना चाहिए और इनको चाहिए कि अपने पड़ोस की मस्जिद में देख लें, अगर उसका रुख बदला हुआ है तो रुख ठीक करा लें। बिल्कुल, और अजान की आवाज़ तो चलें वो तो पहुँचेगी। जो अपील होती है सहरी के लिए वो बार बार उससे गुरेज करना चाहिए, उससे गुरेज करना चाहिए। खामखा कुछ लोग नज़म पढ़ रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, उस वक्त में बुलंद आवाज़ से लोग जो हैं, कोई बीमार है उसको रोज़ा रखना ही नहीं है, कोई मुसाफिर है उसके ऊपर अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि तुम रोज़ा ना रखो, तो ऐसे लोगों के लिए, गैर मुस्लिम भाई हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना है तो उनको भी परेशानी ना हो, हमारी इबादत हमारे लिए ज़हमत ना बन जाए किसी के लिए भी। बिल्कुल मौलाना साहब। नजमा साहब फरमाइए, सवाल क्या है आपका बहन? हेलो
جی हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सब लोगों को मेरा सवाल ये है कि मेरे पास 1 तोला सोना है और थोड़ी मामूली सी चांदी है, तो उस पर ज़कात होगी क्या? और दूसरा सवाल ये है कि हमारी बेटी है हिना खान, उसका नाम है। मौलाना आपकी कारी साहब से गुजारिश है कि आप नाम लेकर दुआ कर दें, उन्होंने नीट का पेपर दी, उसमें उनका नाम आ जाएगा इंशाल्लाह। ये बताएं आपने सोने की मिकदार क्या बताई है? 1 तोला। एक तोला? एक तोला सोना है और मामूली सी चांदी। ठीक, थोड़ा सा इंतजार। हसीना साहब आप बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले मैं ये जानना चाहती हूँ सदका फित्र में किन चीजों का एहतमाम करना चाहिए, और नमाज वितर जो पढ़ते हैं तो उसमें दुआएं कुनूत कब पढ़नी चाहिए? नमाज वित्र में दुआएं, ठीक है। दुआ कुनूत के बारे में जानना चाह रही होंगी जी मौलाना साहब। दुआ कुनूत जो है, जब हम नमाज से फारिग हो, यानी सूरह फातिहा और सूरह से फारिग हो जाते हैं, उस वक्त में दुआ कुनूत पढ़ी जाती है तीसरी रकात में वित्र में। जी, सदका फितर जो है उसके बारे में जानना चाह रही हैं। इंशाल्लाह इस पर हम पूरा एक एपिसोड करेंगे बहन। आज हम मुख्तसर तौर पर जान लेते हैं कि किन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए, यानी कौन कौन सी चीज़ें सदका फितर के तौर पर दी जा सकती हैं। बस जो आम तौर पर जिस इलाके में गेहूं का आटा दिया जाता है जी, उसी हिसाब लगे चावल वाले इलाके में चावल देते हैं, वरना 1.25 किलो गेहूं का आटा या गेहूं दे दिए जाएं या उसके पैसे दे दिए जाएं एक आदमी का सदका फितर। बिल्कुल, इंशाल्लाह बहुत जल्द 2-3 दिनों में ही इंशाल्लाह सदका फितर को मौजू बनाएंगे गुफ्तगू का। एक और सवाल जो है वो ये बारिश के लिए दुआ करने के लिए कहा है कि बारिश के लिए, अपनी बच्ची के लिए, बच्ची के लिए दुआ करें। अच्छा, इन्होंने तो हिना साहबा ने कहा है कि मेरी बच्ची का नाम लेकर दुआ कर दीजिए। बारिश के लिए आपके पास आएंगे पूरी फरमाए, मुश्किलें आसान फरमाए उस बच्ची के लिए, और तमाम बच्चे और बच्चियाँ जितने भी हैं और जो लोग भी ख़ास तौर पर देख रहे हैं और बाकी जो नहीं भी देख रहे हैं, अल्लाह ताला सभी की हाजत है अपने करम से पूरा फरमाए। आमीन। ये सवाल जो है शगुफ्ता का सना का है कि उनके इलाके में बारिश नहीं हो रही है, तो नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किस तरह हो या दुआ किस तरह की जाए, कोई वजीफ़ा? देखिए, इसका बेहतरीन तरीका ये है कि इलाके के लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएं और इकट्ठा होकर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें। ये तरीका पहले भी हमारे उम्मत में मौजूद था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि उन्होंने जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी दुआ को कबूल भी फरमाया था। तो यही तरीका है, इज्तिमाई तौर पर जब दुआ होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़्यादा पसंद फरमाता है। इस तरीक़े को अपनाएं, इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल फरमाने वाला है। जी, और भाई की कॉल कई दिन से आई नहीं है, तो सैलार भाई बिल्कुल नाराज़ ना हो आप। आपके माशाल्लाह बहुत सारे पुरखुलूस लोग हैं जो चाहने वाले हैं, आप सवाल किया कीजिए। अगर आपकी कॉल पहुंचेगी तो ज़रूर शामिल करेंगे इंशाल्लाह। शगुफ्ता साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी बहन। जी, मैं ये मौलाना साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि सिरात तस्वीर की नमाज में जो कल्मा पढ़ा जाता है तो आधा पढ़ा जाता है या पूरा पढ़ा जाता है? ठीक है। और एक सवाल और है, हाँ, वो इस्तग़फ़ार जो पढ़ते हैं हाँ, तो वो इसमें अज़ेर लगा होता है या ज़बर लगा होता है? ठीक है। सलीम भाई सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे जहाँ जा रहा हूँ कि फितरा और ज़कात में क्या फर्क है? ठीक है जी जी सलीम भाई, और भी कोई सवाल है? मौलाना साहब सलात तस्बीह के बारे में कि पूरा जो है पढ़ना है या उसको सिर्फ उसका एक हिस्सा पढ़ा जाएगा? देखिए, पूरा अधूरा नहीं है। अक्सर रिवायतों में जो आता है वो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इतना ही आता है। बाद रिवायतों में यह है कि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम भी पढ़ा जाए। इसलिए जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आप ज़्यादा आखिर तक पढ़ेंगे पूरा तो ज़्यादा अजर सवाब होगा, वरना अगर वहाँ तक भी पढ़ लें अल्लाहु अकबर तक तो अभी काफ़ी है। जी, इस्तग़फ़ार के लिए ज़रा उसके एराब की जो है वो तो वजाहत कर दीजिए, उसमें ज़ेर है या ज़बर? इस्तग़फ़ार बहुत सारे लोग उसको पढ़ते हैं, वो असल में इस्तिग़फ़ार है। जी, इस्तिग़फ़ार का लफ्ज़ है, वो गफ़रा से बना हुआ है। जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि या अलीयुल अज़ीम या अलीयुल अज़ीम, इसमें भी लोग बहुत से लोग जो है वो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि इस तरह पढ़ा जाता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इस तरह शायद जो है। वो देखिए, इनका सवाल ये है, एक तो है उसका नाम, जी, ये जो अमल हम कर रहे हैं इसका क्या नाम है? इस्तिग़फ़ार। जी,
हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, इस अमल को क्या कहते हैं? इस्तिगफार करना। यहाँ तो अलिफ के नीचे ज़ेर है, और जब हम अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहे हैं, जब ये अमल करेंगे हम, तो उस वक्त अलिफ के ऊपर ज़बर होगा, उस वक्त अस्तगफिरुल्लाह के। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। सदका, ज़कात और सदका फित्र दोनों में क्या फ़र्क है? जी देखिए, जो ज़कात होती है वो एक ख़ास किस्म का माल है। जैसे आपके जो माल तिजारत है, जो आपने कमा के रखा हुआ है, उससे जो है एक साल गुजर जाने पे जो उसका 2.5% होता है, उसको उस रकम को जो निकालते हैं उसको ज़कात अदा करना बोलते हैं। और सदका जो फित्र होता है वो ईद के दिन जो है नमाज से पहले अदा किया जाता है, जैसा कि मौलाना साहब ने बताया भी कि उसकी मिकदार है 2.25 किलो गेहूं या आटा या उसके बराबर की रकम जो आप किसी को अदा करते हैं, वो एक अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। वो जो रोज़े की कमी बेशी होती है, भूल चूक होती है, वो उसकी तलाफी है। मौलाना साहब, एक बहुत अहम सवाल है। चमन साहिबा ने कहा था उनके भतीजे, शौहर के भतीजे ने ज़मीन जो है वो अपनी बीवी के नाम कर ली है और ये उसको फ़रोख्त नहीं कर पा रही है, तो कोई वजीफ़ा बता दीजिए। देखिए, पहले तो वजीफे से पहले मैं ये बात बता दूं कि ज़मीन जायदाद के और लिखत पढ़त के जो मामले होते हैं, बहुत सारी ख़वातीन और बहुत सारे मर्द भी किसी आदमी के ऊपर एतमाद करके करते हैं कि लो ये पैसे और इसके ज़मीन ख़रीद के हमारे नाम करा दो। उसने ज़मीन तो ख़रीद ली उसी पैसे से और नाम अपने कर ली या अपनी बीवी के नाम कर दी, उस वक्त हम बेखबर रहते हैं, और जब वक्त गुजर जाता है तो वो मालिक बन गए जिसका नाम है। तो इसलिए एक तो ऐसे मामलात में बेदारी, चौकन्नेपन से मामला करना चाहिए। अब जहाँ ये फंस गई हैं बेचारी, इनको चाहिए कि बहुत ख़ास अय्याम चल रहे हैं, इसमें नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करें, और या कादियल हाजात बार बार पढ़ें, अल्लाह ताला मदद फरमाएगा। हम भी दुआ करते हैं इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मौलाना साहिबान स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाज़रीन के रहनुमाई के लिए। इंशाअल्लाह फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आप सबको दराज़ी उम्र अता करे, सेहत और आफियत दे। वो ज़रा सा एक अपील, जी एक अपील भी है, वो कर दीजिए। वो तवज्जो दिलाई जाती है ये सलाम की तरफ से, सन फार्मा की तरफ से, कि तमाम रोज़ेदार हजरात सहरी के वक्त में अपनी मामूल की दवाएं लेना न भूलें, ताकि उनका दिन भी सुकून से गुजरे और रोज़ा भी सहूलत के साथ पूरा हो जाए। बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद है कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।